Hello everyone, welcome to the Tax Show. I'm CA Rahul Tiwari and we are here to discuss about how we can do our tax planning if we are thinking to sell our residential house property. In short, tax कैसे बचाएं? Invest in property now and keep it for a few years and then sell it at a higher price. This has been the mantra for the individuals who are looking for a secured and less risky investment. However, while doing so, they often forget the tax planning and they unnecessarily pay a higher taxes. So while selling a residential house property, how can we save taxes? Let us discuss on that. So since the house property is a capital asset, it attracts a capital gain. Now, let us understand which portion of the income is taxable. Whether it is the gross amount received for the consideration on sale of a property that is taxable, the answer is no. It is the profit earned, that is the sale consideration of the house property reduced by the cost of acquisition, that is the net consideration, that we net profit that we received is taxable. Now we have understood which portion of the income is taxable. Now let us understand which provisions of the Income Tax Act will help us to save our capital gain taxes. So section 54 of the Income Tax Act mentions that where a individual or an HUF sells his residential property, he can save his capital gain tax by investing in purchase or construction of another residential property. Now, here I have to elaborate that this exemption is only available to individual and HUF. This is not available to any other entities, like it may be a partnership firm, a body corporate, a body of individuals, or any other entity. It is not available to them. It is only available to individual and HUF. And it is available if the capital gain amount is again invested in the purchase or construction of another residential property. So now the question is that whether there are any conditions that needs to be fulfilled to avail this tax exemption. The answer is yes. The first condition is that the residential house must be a long-term capital asset. Now, what does it mean by long-term capital asset? It means that the period of holding of this asset should be more than 2 years. Another condition is that within a period of a 1 year before or 2 years after the date of the transfer, the residential property, another residential which you are planning to buy, must have been acquired. So if you comply with this condition, the tax exemption is available. Now we have another third condition that needs to be followed, and that is the new property that we are purchasing must be in India. It cannot be purchased outside India or abroad. Now I want to explain more further in detail about the condition number 2 because it is difficult to understand. So what I mean by 1 year before, if I am planning to buy a property from the capital gain earned, then it must be purchased. अब इसको ज़रा सा डिटेल में देखिएगा, जिस डेट पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, उसके 1 साल पहले ही अगर मैंने उसके बीच में मैंने ले लिया है कोई भी दूसरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, चलेगा? या डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 2 साल तक के बीच में कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, तो भी चलेगा. ये कंडीशन इज फुलफिल्ड. And if any assessee says I do not want to purchase a residential property, I want to construct it, तो क्या कंडीशंस है? तो उसमें जो टाइम लिमिट दी गई है, डेट इज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर अप टू 3 years आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अपने हाउस प्रॉपर्टी की. तो ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं, देन यू आर गुड टू गो टू गेट एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ योर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. सो आवर क्लाइंट्स आस्क कि सर आपने जैसे कंडीशंस बताए थे सारे फुलफिल कर लिए, नया प्रॉपर्टी भी 2 साल या 3 साल जैसा भी केस था हमने उससे परचेस कर लिया या कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब क्या उसके बाद भी किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो द आंसर इज यस. जिस भी डेट पे आप नई प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं, फ्रॉम दैट डेट
till 3 years there is a lock in period. What does it mean? Lock in period matlab you cannot sell the property to any person within the period of a 3 years from the date of acquisition of that new property. अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने लॉक इन पीरियड फॉलो नहीं किया, तो जो भी एग्जम्पशंस आपने पहले लिए थे अंडर सेक्शन 54, वो द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट न्यू प्रॉपर्टी, वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर दैट वुड बिकम टैक्सेबल. ना हाउ इट वुड बिकम टैक्सेबल? आप पूछोगे कि वो तो हमने पहले एग्जम्पशन ले लिया है, ना हाउ इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन दैट फाइनेंशियल ईयर? सो द आंसर इज कि जब हम सेल करते हैं, व्हाट वी कंसीडर द सेल प्राइस, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड द नेट कंसिडरेशन दैट वी रिसीव्ड, मीन्स आफ्टर सेल माइनस कॉस्ट द प्रॉफिट दैट वी हैव अर्न्ड इज टैक्सेबल, जैसा हमने पहले बताया. सो in taking the cost of acquisition, that earlier tax exemption that we have taken will be reduced. So it will reduce your cost of acquisition and ultimately the profit will increase and hence it would become the taxable amount. So आप लॉक इन पीरियड को वायलेट नहीं कर सकते. आपको ये बेटर समझेगा by taking an example. So I'll take the example ahead. Suppose in June 2015, Mr. Sumit sold his residential house property and earned a capital gain of 25 lakh rupees. In October 2015, right 3 months after, he purchased another residential property for a cost of 40 lakh rupees. And in June 2017, what he did, he sold this property, the newly acquired one, for 55 lakh rupees. Now we'll understand how the capital gain will be computed. So for the financial year 15-16, इन्होंने कैपिटल गेन कितना अर्न किया? 25 लाख रुपया. तो इनको वो कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करना था, टोटल 25 lakhs टू अर्न अ टोटल एग्जेम्पशन ऑफ 25 lakhs. इन्होंने 40 लाख इन्वेस्ट कर दिया, सारे कंडीशंस फुलफिल्ड. सो इनको सारे टैक्स एग्जेम्पशन मिलके लाइबिलिटी आई कुछ भी नहीं, जीरो. इनका पोस्ट एक्विजिशन कंडीशन क्या था कि 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड इनको फॉलो करना चाहिए था. इन्होंने 3 साल के अंदर ही अंदर अपनी नई वाली प्रॉपर्टी को सेल कर दिया. सो अगर हम उसमें देखें तो सेलिंग प्राइस जो थी दैट वाज 55 lakhs. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? दैट वाज 40 lakhs. बट सिंस ही हैव वायलेटेड द कंडीशंस फॉर एन एग्जेम्पशन, अब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो 40 lakhs में से जो अर्लियर कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन हमने लिया है that would be reduced. That means 40 lakhs minus 25 lakhs of an exemption जो पहले हमने ली हुई है. तो net cost of acquisition जो actual अब निकल के आया है that is 15 lakhs. So now 55 lakhs of a sale price minus 15 lakh to be considered as a cost of acquisition. Now 40 lakhs is going to be the taxable capital gain. Now clients के मन में डाउट होता है कि सर मेरे पास एक नहीं मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, तो ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में से किसी एक को भी अगर मैं सेल करता हूँ और उसके बदले नया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता हूँ, तो क्या ये मेरे एग्जेम्पशन पे कुछ इम्पैक्ट डालेगा? मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? सो द आंसर इज आप एलिजिबल हो. आपकी करंट ओनरशिप कितने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर के है, इसका इस प्रोविजन से कोई भी संबंध नहीं है. यू विल गेट द एग्जेम्पशन. नाउ अनदर क्वेश्चन ऑफ द क्लाइंट इज कि सर एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो हमने बेच दी और उसके बदले में सारे कंडीशंस हम कंप्लाई कर रहे हैं फॉर टेकिंग द एग्जेम्पशन. नाउ एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं या दो में कर सकते हैं? सो द प्रोविजन ऑफ दिस लॉ सेज कि आप एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक आपने जो बेची है, नहीं आप उसके बदले में एक खरीद रहे हैं, उसके आप ओनर हो जाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा. However, there is an exception to this rule, which says कि अगर आपका कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ तक ही है, 2 करोड़ को क्रॉस नहीं कर रहा है, at that point of time you can invest by purchasing or construction in 2 house properties. However, ये जो भी आप एक्सेप्शन रूल का बेनिफिट लेंगे, दिस इज अवेलेबल ओनली वंस. आपने एक बार इसका बेनिफिट ले लिया तो नेक्स्ट टाइम से आप सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक और पॉइंट पे आपको एम्फसाइज कराना चाहूँगा कि
जब आपने अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को, और आप दूसरे प्रॉपर्टी को परचेस या कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप अपने नॉर्मल अकाउंट्स जो आपने होल्ड करके रखे हुए हैं उसी से कर सकते हैं क्या? तो द आंसर इज, अगर आप सेम ईयर में ही कर रहे हैं, डेट इज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर इन विच यू हैव ट्रांसफर्ड योर असेट, तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप प्लान करते हैं या भाई आप अनडिसाइडेड है कि मैं प्रॉपर्टी कहाँ खरीदूँ या कहाँ पर बनाऊँ, या अभी तक आपके प्रॉपरली जो अच्छी डील्स होती हैं वो आपकी नहीं हुई है, तो आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं आने वाले सालों में, तो क्या आप वो नॉर्मल अकाउंट से कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आपको एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर ये अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, और उसमें बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आपको ये जो कैपिटल गेन का अमाउंट जो आपका आ रहा है, यानी कि सेल प्राइस माइनस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जो आपको कैपिटल गेन आ रहा है वो आपको उस अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। और ये डिपॉजिट की हुई अमाउंट को आप आने जो टर्म्स आपको दी गई है कि विद इन 3 ईयर्स कंस्ट्रक्ट करना है या विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको परचेस करना है, आपको इसमें उसको यूटिलाइज करना है। हावेवर अगर ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि आपने डिपॉजिट तो कर दिया, ये कंडीशंस तो अप्लाई की, बट यू हैव नॉट यूटिलाइज दैट अमाउंट टू परचेस और कंस्ट्रक्ट द अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो जब ये 3 ईयर्स का पीरियड लैप्स होगा, एट दैट पॉइंट दिस अमाउंट वुड बी टैक्सेबल। This is how you can save your taxes while you are planning to sell your residential property. For any queries or consulting, you can contact us. And stay tuned to this channel for more such tax saving tips and tricks. Thank you so much.